Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we will study upsampling and also have a look at different other sampling rate conversions, both integer as well as non-integer. So let me share the slides with you. Right. Um, so in today's lecture, we will look at downsampling, decimation, the revision of it, and then the upsampling or interpolation, and finally changing the sampling rate by a non-integer factor. So basically in decimation and interpolation, what we are doing is we are using an integer uh, as a sampling rate, maybe L equal to 2, M equal to 2, so on. So जब आपने डेसिमेशन पढ़ी थी तो आपने देखा होगा कि you start from a continuous time signal and then so xc of nt is a continuous time signal. I convert it into a discrete domain signal, and then I can change the sampling rate of x of n to obtain a new discrete time signal such that x dash of n is xc of nt dash. So, and then but our consideration is to reconstruct the same xc of t after we are done with the sampling rate t dash. Okay, so या तो आपने डेसिमेशन कर दिया या इंटरपोलेशन कर दिया, उसके बाद आपको सैम्पलिंग रेट को वापस so अगर आपने डेसिमेशन किया बाय टी डैश तो आपने अकॉर्डिंगली रिकंस्ट्रक्शन भी टी डैश के लिहाज से करनी है एंड देन रिकवर करना है एक्स ऑफ टी को. In case of decimation, what we saw was that whatever the time period was t dash, it became empty. Okay, so वो ये रहा है कि in decimation or called downsampling, what you are doing is you are reducing the sampling rate of a signal. This is what the frequency domain relation of downsampling or decimation was. So you start with x of n, which is x of e raised power j omega, और आपको पता है कि वो हमेशा जब हम लिखते हैं सैंपल सिग्नल का तो 1/t से उसको स्केल कर देते हैं. Then xc of j omega is shifted by an amount omega s. So k times omega s यानी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स पे वो शिफ्ट हो जाता है सिग्नल. Once you do decimation, what happens is that xc of nt becomes xc of nm of t. So what the implication was that you have 1/mt as a scaling factor, then xc of j of omega over mt and 2 pi r over mt. So yeah, r is a new variable starting from -infinity to infinity. This r is actually I plus k of m, and replacing this in this equation, you can get 1/m as the scaling factor, then the whole of this summation, where k is from -infinity to infinity. So ye k is from -infinity to infinity, and then this equation, because r को आपने replace किया with I plus k of m, तो I plus k of m इधर आ जाएगा, and m in this denominator gets cancelled with the numerator. Now comparing these two equations, इस equation को इस equation से आप compare करें तो xd of e raised power j omega यानी decimated signal का Fourier transform 1/m scaled हो जाता है, I is from 1 to m minus 1, and this is the Fourier transform of x of e raised power j omega scaled by or shifted by an amount 2 pi I over m. So ये m से डिवाइड करने का मतलब ये है कि जो उसकी रेप्लिकास हैं वो भी एक्सपैंड हो जाती हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में. सिमिलरली जो मेन रेप्लिका है जो 0 पे आ रहा है वो भी
स्केल अप हो जाता है बाय एन अमाउंट m। सो देयरफॉर ऑल्दो हम टाइम डोमेन में सिग्नल को जो है वो हम ड्रॉप कर रहे हैं, मगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल एक्सपैंड होता है। एग्जांपल ऑफ डाउन सैंपलिंग इन टाइम डोमेन इज लेट्स से m इक्वल टू 4 आपने ले लिया, ओके। सो m इक्वल टू 4 में हमेशा m-1 सैंपल्स आप डाउन सैंपल करते हैं, यानी थ्रो अवे करते हैं। सो दिस मींस के एक सैंपल आपने रिटेन किया और 3 सैंपल्स आपने थ्रो अवे कर दिए, फिर एक सैंपल रिटेन किया, 3 सैंपल्स थ्रो अवे कर दिए, फिर रिटेन किया। सो कलेक्टिवली द रिजल्टेंट सिग्नल विल बी दिस वन, ये जो आपको फील्ड नजर आ रहे हैं, ये वो सिग्नल है जो कि आपको मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये डाउन सैंपल सिग्नल आ गया, ओके। तो डाउन सैंपलिंग इन टाइम डोमेन is done like this. Down sampling in frequency domain is that you have, let's suppose आपके पास m equal to 3 है, okay. So m equal to 3 के केस में the signal is x of e raised per j omega, अगर उसका देखें, so pi by 3 is the bandwidth of that signal. So minus pi by 3 से pi by 3 तक एग्जिस्ट कर रहा है, हमें पता है वो 2 pi पे रिपीट करता है। नाउ फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने m से सारे एक्सेस को मल्टीप्लाई कर देना। So once we multiply that, तो expansion in frequency domain हो जाएगी, okay? This means कि जो सिग्नल pi by 3 पे है वो pi पे चला जाएगा, right? So similarly जो -2 pi by 3 पे है वो भी सॉरी ये minus pi by 3 पे है, ये भी minus pi पे आ जाएगा। And as I and obviously जो सिग्नल 2 pi पे है, m इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई करने की वजह से वो 6 पाई पे चला जाएगा, बट अगेन बिकॉज रेपिटेशन जो है वो 2 पाई पे है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो कोई रेप्लिका यहाँ 2 पाई पे भी आएगा और -2 पाई पे भी आएगा। जब इफ यू रिमेम्बर द प्रीवियस लेक्चर, तो उसमें मैम ने आपको बताया था कि अगर एलियासिंग नहीं होती, जैसे इस केस में एलियासिंग नहीं हो रही, तो x of e raised power j omega is 0 for pi over m to pi. So अगर वो ऐसा नहीं है, to avoid sampling हमें एक प्री फिल्टरिंग भी करनी पड़ती है, यानी pi by m से लेके -pi by m तक का एक लो पास फिल्टर लगा के फिर डाउन सैम्पलिंग करनी है। तो डाउन सैम्पलिंग में नॉर्मली आप m की वैल्यू अगर 3 है तो एक एरो डाउनवर्ड्स करके 3 लिख देंगे, दैट मींस यू आर डाउन सैम्पलिंग इट। सिमिलरली pi by 3 and -pi by 3 is the cut off of this filter. So ये इसलिए है कि दो एग्जांपल्स की गई थी प्रीवियस लेक्चर में, और उसमें एक में जो है एलियासिंग हो रही थी, एक में एलियासिंग नहीं हो रही थी। तो जहां एलियासिंग होने को अवॉइड हम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एलियासिंग ना हो, तो डिस्क्रीट डोमेन में सिग्नल को ले जाने के बाद आप एक लो पास फिल्टर एक डिस्क्रीट टाइम में लगा देंगे और उसके बाद डाउन सैंपल करेंगे। ठीक है, ये मेरा बेटा आ गया पीछे, तो उधर ही आप जाओ, मेरा लेक्चर हो रहा है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, सो वो एग्जांपल्स आप प्रीवियस लेक्चर की जरूर देख लीजिएगा कि क्यों हमें प्री फिल्टरिंग चाहिए है बिफोर वी डेसिमेट। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि नॉर्मली एंटी एलियासिंग लो पास फिल्टर आप लगाते हैं सैम्पलिंग करने से पहले, जो मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आप एक लो पास फिल्टर यूज कर रहे हैं इन द डिजिटल डोमेन और डिस्क्रीट डोमेन। ठीक है, तो लो पास फिल्टर जो है वो पूरे के पूरे हर रेप्लिका पे अप्लाई होगा, ओके। और इसकी एडवांटेजेस क्या है, ये एक लो कॉस्ट भी है, आपने कंप्यूटर में वो बनाना है, उसकी वैल्यू स्टोर होनी है, और सो ये जो प्री फिल्टरिंग डिस्क्रीट डोमेन में की जाती है ये इजी है एज कंपेयर टू इन एनालॉग डोमेन, बिकॉज एंटी एलियासिंग एनालॉग लो पास फिल्टर इज अ हाई परफॉर्मेंस फिल्टर और उस पर कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। तो अगर आप एलियासिंग को पहले एंटी एलियासिंग लो पास फिल्टर लो कॉस्ट भी लगा सकते हैं, और उसके बाद फिर आप डिजिटली ये डिस्क्रीट डोमेन में डेसिमेटर का डेसिमेशन फिल्टर लगा सकते हैं। तो दिस कैन आल्सो बी डन।
ओके सो अभी यहाँ तक रिवीजन होगी, नेक्स्ट से हम अपस्केलिंग या इंटरपोलेशन स्टार्ट करेंगे।